Hello, good morning. Welcome back. Today's topic is types of RNA. Already we have done a few introduction on this that there are three types of RNA: messenger RNA, that is mRNA, ribosomal RNA or rRNA, and transfer RNA or soluble RNA. We also call it as sRNA or tRNA. Now, messenger RNA or mRNA provides template. This we have already seen that it is the template or it is been used for translation of protein synthesis. So this portion you have already done in translation. RNA or ribosomal RNA, these are the structural and catalytic role they have during translation. That is 23S rRNA is in bacteria acts as a ribozyme. Okay, so it actually gives a structural and catalytic role. That means it enhances the reaction or whatever the process is going on. Next is transfer RNA. This brings amino acids for protein synthesis and reads the genetic code. You will understand this when we are going to do the elaborate translation procedure. Okay. Now you see here children, this is messenger RNA. You have already seen, you have generated this during transcription. Messenger RNA or mRNA was generated during transcription. Let me show you here. This was your mRNA. Remember, ये तो heterogeneous है. When we will cut the introns and the exons are joined, then we get a very good processed mRNA. So this was the mRNA that we were getting here, and using this mRNA we are going to generate new proteins. So you know what is mRNA. Now we come to ribosomal RNA. This is our ribosome structure. We have done the structure of ribosome earlier. You know that ribosomes has been divided into two subunits just like a soap case, and the larger one overlaps the other. So ribosome has two subunits, smaller and the larger, और ये उसका RNA, right? Then this is the transfer RNA. It just looks like a clover, long होती है ना, long की तरह दिखता है. This is the structure of a tRNA. So we are going to discuss all types of RNAs. Let me first start with your tRNA. Francis Crick postulated the presence of an adapter molecule that can read the code and to link with the amino acid. एक बात याद रखनी है बेटा कि mRNA जो है इसके ऊपर कोडिंग्स है, राइट? ये कोडिंग्स है. अब कोई तो हो जो इस कोडिंग को रीड करे, और आपको पता है कि कोडिंग्स जो हैं वो 3 के सेट में होती हैं. अब कोई तो हो जो इसकी रीडिंग करेगी. अच्छा, ACG है तो जी ACG अगर रीडिंग कर ली है तो ACG से का जो अमीनो एसिड है वो ही आए और इसके ऊपर आके अटैच हो जाए ACG. ऐसे ही नेक्स्ट अगर CCC है तो CCC की रीडिंग की और फिर CCC वाला ही अमीनो एसिड आए और उसके ऊपर आकर अटैच हो जाए. तो फ्रांसिस क्रिक ने कहा कि कोई तो ऐसा एक मॉलिक्यूल होगा, अडेप्टर मॉलिक्यूल, जो ये रीडिंग करता होगा कोड की. पहले तो वो कोड की रीडिंग करता होगा और उसके बाद उस कोड से रिलेटेड जो भी अमीनो एसिड है उसको लाके वो उसके ऊपर अटैच कर देता होगा, है ना. कोड के हिसाब से उसी का अमीनो एसिड आए और अटैच हो जाए. तो कोई तो ऐसा अडेप्टर है, ये फ्रांसिस क्रिक ने कहा. देन tRNA इज कॉल्ड द, तो हमारा वो अडेप्टर मॉलिक्यूल कौन है जी? दैट इज tRNA. तो ये काम कौन कर रहा है? रीड करके एग्जैक्ट प्रोटीन को लाके बिठाना, कोई गलत प्रोटीन अमीनो एसिड ना आ जाए, एग्जैक्टली वही अमीनो एसिड आए, ये काम करना है tRNA. Now you see tRNA और the adapter molecule, इसको हम क्यों बोलते हैं? It's called adapter molecule because of these points. सबसे पहले an anticodon loop है इसके पास. अब मैं आपको ये tRNA का फुल स्ट्रक्चर दिखा रही हूँ. डायग्राम आप साथ के साथ बनाओगे और एग्जैक्टली ऐसा बनाओगे. So you can see tRNA has an anticodon loop. This is your anticodon loop of tRNA, and that has a base complementary to the codon. अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. tRNA के पास जो भी कोडॉन है
यहाँ पे जो भी कोडॉन है वो कोडॉन्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, जो भी नीचे mRNA पे जो भी कोड होगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। यहाँ पे मान लो नीचे mRNA पे है ACG, तो इसके ऊपर क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स क्या होने चाहिए, ए के ऊपर U, C के ऊपर G और G के ऊपर C। तो याद रखो एंटी कोडॉन लूप that has bases, okay, this will have bases complementary to the codon. Next, an amino acid acceptor end. Now you see this is amino acid acceptor end, 3 dash end. ये 3 dash है, this is 5 dash. ओके तो ये वो एंड है, ये वो जगह है जहां पे आके अमीनो एसिड अटैच होगा। जो भी इसने रीड किया होगा, जिस भी पर्टिकुलर कोडॉन को इसने यहाँ पे रीड किया होगा, जो भी कोडॉन रीड किया होगा इसने, उसका पर्टिकुलर अमीनो एसिड आएगा और अटैच होगा यहाँ पे। दिस इज द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ द अमीनो एसिड where it will bind. Next is ribosome binding loop. This is the ribosome binding loop. This is the loop जहाँ ribosome bind होगा, and enzyme binding loop is here. This is enzyme binding loop. तो अडाप्टर मॉलिक्यूल क्यों है, आप समझ आ गई। अडाप्टर आप किसको बोलते हो, आप घर में अपने अडाप्टर्स लगाते हो ताकि आप एक साथ दो तीन चीजें उसके साथ अटैच कर सको। तो आप ये देख रहे हो, व्हाई डू वी कॉल इट एज अडाप्टर मॉलिक्यूल, बिकॉज यहाँ पर तो वो कोड की रीडिंग कर रहा है, जिसका ऑपोजिट और कॉम्प्लीमेंट्री कोड यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे राइबोसोम के साथ बाइंड कर रहा है, यहाँ एंजाइम बाइंड हो रहा है, और यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर अमीनो एसिड ने आके अटैच होना है वो बाइंड हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डू वी कॉल टीआरएनए एज एन अडैप्टर मॉलिक्यूल। सो दीज आर द रीजंस, यू कैन शो अलोंग विद द डायग्राम। आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ फॉर इनिशिएशन there is another tRNA called initiator tRNA. अब स्टार्ट करने के लिए हर प्रोसीजर को कुछ ना कुछ चाहिए हमें। एक इनिशिएटर tRNA है। देर आर नो tRNAs फॉर स्टॉप। स्टार्ट करने का तो tRNA है हमारे पास, स्टॉप का tRNA नहीं है। सेकेंडरी 2D structure of tRNA looks like clover leaf. I already told you clover leaf क्यों है। This is how it looks. क्लोवर लीफ, वाई, बिकॉज लॉन्ग की तरह थोड़ा सा दिखता है। 3D स्ट्रक्चर लुक्स लाइक इन्वर्टेड एल। अगर हम 3D स्ट्रक्चर देखें तो वो ऐसा कुछ दिखता है। दिस इज 3D स्ट्रक्चर ऑफ tRNA, राइट। नाउ children, as I told you, for initiation there is another tRNA called initiator tRNA. There are no tRNAs for stop, and this is how the tRNA looks like clover, and this is what. Now let me show you here 5 dash to 3 dash। ये मेरा mRNA है जो मैंने ट्रांसक्रिप्शन से बना दिया था। प्लीज ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। मेरा mRNA ट्रांसक्रिप्शन करने के बाद रेडी था। 5 dash to 3 dash mRNA, प्रोसेस्ड mRNA रेडी है। अब मुझे करना क्या है, ट्रांसलेशन करना है। दैट मीन्स इस mRNA के हिसाब से मुझे प्रोटीन्स ऐड बनाने हैं। तो अब मेरा mRNA का फर्स्ट कोडॉन है AGU। ये मेरा, इफ यू रिमेम्बर, स्टार्टिंग कोडॉन है AGU। तो tRNA जो है इसको रीड करता है, तो A के ऑपोजिट क्या होगा U, G के ऑपोजिट क्या होगा C, और U के ऑपोजिट क्या होगा A। और tRNA का ये एंटी कोडॉन लूप है, इफ यू रिमेम्बर, दिस इज द एंटी कोडॉन लूप। ओके, तो जो भी mRNA पे कोडॉन्स हैं, ठीक उसका कॉम्प्लीमेंट्री कोडॉन्स जो हैं, दे आर हियर ऑन द एंटी कोडॉन। अब एंटी कोडॉन लूप्स को देखते हुए अमीनो एसिड आ जाता है। लेट मी शो यू योर जेनेटिक कोड का टेबल। पहले तो आप ये देख लो फिर से ध्यान से। इट इज UCA AGU। तो लेट मी शो यू योर एंटी कोडॉन UCA, sir. Can you see here? UCA is sir. तो because एंटी कोडॉन लूप पर उसने रीडिंग कर ली है, द कोड्स आर UCA, तो कौन सा अमीनो एसिड आके अटैच हो रहा है, इट इज सर। तो अमीनो एसिड बाइंडिंग साइट दैट इज ऑन 3 dash, इट हैज गॉट अटैच्ड, यू कैन सी, राइट।
अब नेक्स्ट कोडॉन जो है वो मेरा है यूएसी, तो यूएसी के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री ऐड हो गया यहाँ पे, यू के आगे ए के आगे यू, सी के आगे जी। तो AUG का जो भी टेबल में अमीनो एसिड है दैट विल कम एंड अटैच हियर। दिस इज हाउ tRNA जो है वो अमीनो एसिड्स को अटैच करे। तो ये एक तरह से अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह बिहेव कर रहा है। कैन यू सी ऑल ऑफ यू? Okay, so this is about tRNA